Rama, Hare Krishna. Good morning, you magical people. Welcome, welcome to our day 22, our week 4 of Magical Me, of Life Transformation Series 4. It's a beautiful inward journey that we're going to be taking now that we're ready with so many more things in our being. And at this beautiful moment, let's take a bow. Let's take a bow in front of our divinities, whoever they are, wherever they are, all the masters, all the teachers, all the gurus, all the angels, all the guardians, all the divinity, all the magical beings, the spiritual beings that we are a part of. May each one of us find a deeper sense of learning of exactly who we are. May we get answers. May we understand our role on Mother Earth. May we continue to learn to look inward, be guided, be guarded, be protected. May we all become channels of love, light, joy, and abundant happiness. May we be the ones. So it is. So be it. Thank you, divinities. And now you can all gently open your eyes. If you want, you can rub hands together, or just open your eyes, whatever works for you. Thank you, divinities. So a quick recap. We have finished our 3 elements out of 4. First week being about mind, where we got trained to sleep in time, wake up in time, do our rituals, connected how mind works. Then we made our body more harmonious by intertwining it with our mind and making conducive for our learning. So we talked about eating a lot of whatever we watch, what we eat, do some intermittent fasting, detox our bodies, declutter our surroundings, and a lot that we happened in the body week along with the mind week. We've done a lot. When we talked about the heart, we found our deeper connection, that we learned to connect, to discover, to listen to our heart, the choices that we make, or whatever happens, just to go inward, a heartward way. Today, on this magical Monday, today, on this last Monday of this beautiful year, beautiful month, the super special September that I call, we are entering into the soul world, and that too, when the new beginnings are happening. So we just had a new moon. We've done a new moon rituals yesterday. And now we are entering this. There's a reason, there's a purpose for all of this. The divine synchronicities are happening because we are open and receptive for learning and beginning a new journey. How many of us are spiritually bent? We'll get to know now. But let's understand one thing. A to Z, all of us are spiritual beings having a human experience. And these 7 days are going to mark our beginning into soulful awakening of who we are. Me not being Mridul or Sonia, or Prashant or Chanda, no. Me being a soul. Why am I here? And we will go inward. So this is what the 7 days will all mark about. Yesterday, we finished our week 3, and we did how to change with changes. We spoke about heartful expressions. The last day of that, we spoke about dreams. What are dreams? How do you manifest them? How do you add motion into, how do you add them into motion, energy into motion, and that becomes emotion? How do you add emotions to your manifestations to make it true, to make it clear? Because that's what is a language of the heart. Then we understood the basic science of law of attraction, how it works. We also had a beautiful science decoded with manifestation. And we understood bit by bit about how life is, what it is, and we just kept going on and on and on. So today, let's understand the very first concept, the day 1 of our soul world. So
What is spirituality? When I asked this question, in fact, I didn't even ask this question because I was connected with myself in 2021 very deeply. One night when a lot was happening, somebody crossed over. I did not know her. And she wanted me to wake up and chant for her because she was part of my conscious community with Nitya Shanti, my teacher, right? And she said, you're a beacon to spread the light for spirituality. And I'm in my dream, right? 7 o'clock at night, 7:30. I crashed early that day. It was a very, very long day. And she wanted me to wake up. And she said, I said, what's spirituality? And she said, it's spirit's actual reality. Now, I haven't coined this word. Preeti Bhandari, after crossing over, gave me this definition. Spirit kya hoti hai? Anyone can tell me in the chat box, what is a spirit? हम बोलते हैं high spirited है इंसान. Absolutely, Ritu, thank you. Spirit is soul. It's the Atma. Spirit जब तक हमारे अंदर रहती है, तब तक हमारे अंदर प्राण होते हैं. तो स्पिरिट बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को छोड़ती है, तो हम निष्प्राण हो जाते हैं. We become dead. ये स्पिरिट है, ये करोड़ों करोड़ों सालों तक से पुरानी है. ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी मिलती 84 लाख योनियों के बाद. सो अगर 86 लाख लाइव्स हमने लिव करी हैं एज रॉक्स, एज प्लांट्स, एज एनिमल्स, फाइनली हम ग्रेजुएट हुए हैं. अच्छा, उसके बाद असुर डेविल्स वी लिव्ड एंड देन फाइनली वी बिकम ह्यूमन बीइंग्स. अब ह्यूमन बीइंग्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है एंजल्स बनने का, राइट? एंजल गाइड्स बनने का. तो तब तक जब तक हम चलते रहते हैं, हम एक लाइफ के लूप में हैं. इस लाइफ के लूप को तोड़ना, एनलाइटमेंट पाना या मोक्ष मिलना इज द प्रोसेस ऑफ नॉट टेकिंग अ रीबर्थ अगेन. और हम बार बार बर्थ क्यों लेते हैं? बिकॉज बहुत लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं और हम उनको नहीं सीख पाते फॉर XYZ रीजंस. और हम यहाँ आके फंस जाते हैं बिकॉज हमारी मेमोरी पुरानी लाइफ की थोड़ी टाइम तक रहती है. तो अब सबको बता दूं, इन दिस 1 वीक हम अपने अंदर काम करेंगे. जो लोग ज्यादा काम कर पाएंगे वो लोग ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे. एंड ये एंडलेस प्रोसेस है. और आपको समझिए एक मिनी क्रैश कोर्स ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल बिगिनिंग करवाऊंगी इन दिस 7 days. सो आज आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और हम इससे क्या समझ सकते हैं. सो सॉरी, आई हैव टू रीड दिस. Just a second, please. Okay. What do you understand by it? What is spirituality of life? So let me answer, because a lot of people will have a lot of things. Spirituality means knowing that our lives have significance in a context beyond a mundane everyday existence at the level of biological needs that drive selfishness, aggression. इसका मतलब हमारे materialistic goals है, हमें अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, I, me and am, self love जो हमने चैप्टर किया था वो सब है. पर इसके beyond भी हमारी लाइफ का एक मीनिंग है. उस मीनिंग को हम इस हफ्ते में ट्राई करेंगे खोजने का. It means knowing that we are a significant part of a purposeful unfolding of life in our universe. Life unfold हो रही है हमारे through इस universe में. Universe में चाहे हम एक मात्र बिंदु से भी कम, एक डॉट से भी कम है, तो भी हमारा मीनिंग है, हमारा अस्तित्व है. हम एक पूरी कहानी का एक पात्र है जो इम्पोर्टेंट है. सो हम अपने आप को निगेट नहीं करें. जब हम बोलते लाइफ में, कोई बोलता है लाइफ में क्या चल रहा है, वही सेम ढाक के दुपाट, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जैसे कल थे वैसे आज है, कुछ नया नहीं हुआ. नया बहुत कुछ हुआ, बट हमारी आंखों ने देखना बंद कर दिया. नया सवेरा हुआ, कुछ और नए कपड़े पहने
सांसें नहीं आई, सांसें छोड़ी पुरानी, फ्रेशनेस आई बॉडी में, इतने मिलियंस ऑफ सेल्स मरे और पैदा हुए, पर हम उनको देख ही नहीं पाते। हम एक मैक्रो लेवल पे दिखते हैं, माइक्रो लेवल पे दिखते ही नहीं। अब हम इस दौरान ट्राई करेंगे उसके अंदर एग्जिस्ट करने का, जाने का। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम बहुत बात करते हैं। उन्होंने ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए, बताने के लिए एक छोटी सी पोम लिखी, जिसको मैंने एक पैराग्राफ के टाइप पे लिख दिया। अ ह्यूमन, वो उनका कहना है, अ ह्यूमन बीइंग is a part of the whole called by us as universe, a part limited in time and space. जब हम ह्यूमन लाइफ में आते हैं तो हम लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, 100-125 साल मैक्सिमम होते हैं। कई लोग 137-140 तक भी चले गए, 150 साल मैक्सिमम। तो ये लाइफ आपके कितने भी, अच्छा ये लाइफ जो मैं 150 साल बोल रही हूँ, अब की ह्यूमन बींग्स की बोल रही हूँ, जो हमारे एंसेस्टर्स रह चुके हैं, कौरवास, पांडवास, या बाकी वो तो हजारों साल जीते थे। उसके बाद एक लिमिटिंग बिलीफ आया कि लाइफ 100-150 साल की है, या 70-75 साल की है, 60 साल का वर्ड आया, सठिया आ गए। ये ह्यूमन बींग्स ने कॉइन किया, हमारी कॉन्शियसनेस ने नहीं कॉइन किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बोलना है, ही एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ, हिज थॉट्स, ही मतलब ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को एक्सपीरियंस किया, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, एज समथिंग सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is kind of a prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion, to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. जो आत्मा है हमारी, हमारे अंदर ट्रैप्ड है। आप अपने आप को इमेजिन करिए, जैसे आप एक पिंजरे में एक बर्ड को बंद करके आप उसको फीड करते हैं दाना, या मछली को आपने एक्वेरियम में डाल दिया, सो जो ट्रैप्ड रहती है, पूरे वास्ट ओशन में नहीं होती, अब खुले आसमान में नहीं उड़ रही होती। ऐसे ही आत्मा जो कहीं पर भी भ्रमण कर सकती है, उसको हमने अपनी बॉडी में ट्रैप कर दिया, बिकॉज हमको कुछ सीखना है। लेकिन जब तक हमारी आत्मा हमारी बॉडी में है, अगर हम सीख रहे हैं तो वो उड़ रही है, वो खुश है, अरे फाइनली मैंने ह्यूमन बीइंग में कुछ किया। लेकिन मैं वही गाड़ी, वही घोड़ा, वही घर, वही बच्चे, वही पार्टनर, वही पेरेंट्स, उस ट्रैप में फंस जाती हूँ कि मेरे क्लोज वंस, ओह दीज पीपल मैटर, तो मैं एक ट्रैप में फंस गई हूँ। हमारा काम क्या है? हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इट डजेंट मैटर, मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, लोग बोले तो क्या हम साधिका बन जाएं, या हम साधक बन जाएं, सीकर्स बनना, यस ऑफ कोर्स हमारा काम है, लेकिन अपनी फैमिली से थोड़ा सा लेट गो करना है। जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं यार, बच्चे हैं, उनको भी अपनी कॉन्शियसनेस से काम कर रहे हैं, हम देख लें, बट ये नहीं कहाँ थे, क्या किया, थक गए होगे, सो जाओ, उनको पता है कब थक गए, कब सोना है, कब क्या करना है। हमें बहुत आदत पड़ी हुई है ओवर ऑब्सेस करने की, ओवर एनालाइज करने की, ओवर आस्क करने की, और ओवर गाइड करने की। बिकॉज हम ह्यूमन प्रवृत्ति में आए हैं, तो हम सोचते हैं ये तो नेचुरल है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। पर हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। अगर हम समझ जाएंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये जो सेशन अब आ रहा है, इट इज नॉट टू लुक एट इमेजेस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में इमेजेस आना उतना आसान नहीं होता। सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज टॉक टू यू ऑल, एंड आप लोग को कुछ लिखना है तो लिखिएगा, और नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, बिकॉज अब आप सोल लेवल पे आ गए। अब जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप अपने अंदर ले आए। तो जिन लोग को अगर समझना है ज्यादा, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, बट प्लीज बी केयरफुल, सुबह का समय ये ना हो जाए आप सो जाएं। सो आप देखें व्हाट वर्क्स फॉर यू। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करवाती हूँ कि हम कौन हैं, हु आर वी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझना। और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये नोन भी है। हमारे ऋग्वेदा इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वेदास, हमारे 4 वेद होते हैं। वेस्टर्नर्स ने उसको हिंदी सिंपल इंग्लिश में कर दिया और हमको समझ में आता है,
ऋग्वेदा इन संस्कृत थोड़ी सी कठिन लगती है। हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में ऋग्वेदा इंग्लिश में क्या बोलता है समझिए। एक उसके ऊपर सेक्शन है हिम ऑफ क्रिएशन। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में देयर वाज नथिंग, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, कोई नॉन एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, कुछ नहीं था। सारा जो यूनिवर्स था या जो भी हम बोलते हैं अनमैनिफेस्ट एनर्जी था। अनमैनिफेस्ट मतलब उसने आकार नहीं लिया था, मैनिफेस्ट मतलब उसको आप आकार दे देते हैं। एवरीथिंग इन क्रिएशन इज मेड अप ऑफ एनर्जी, ये हमको पता है अब तक। वी ऑल नो वी आर एनर्जी बीइंग्स। एनर्जी हैज अ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी इज डेंस, स्थूल होती है। जब लोअर फ्रीक्वेंसी होती है हमें भारीपन लगता है। एनर्जी ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी इज सटल, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी लाइट होती है कि हमें लगता है हम उड़ रहे हैं। तो जो एनर्जी लाइट होती है वो लोग लेट गो करते हैं इजिली, इतने बंधनों में नहीं, बस चिल्ड आउट होते हैं यार। सो हमें चिल्ड आउट होने के लिए पहला कदम उठाना है कि हम ओवर मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पेरेंट, मेरा चाइल्ड, मेरा फैक्ट्री, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरे बॉडी, मेरे कपड़े, इनसे थोड़ा सा बाहर निकलना है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनको एंजॉय मत करिए, बट बहुत ज्यादा इन पे वो मत दीजिए। द फिजिकल मैटर दैट वी कैन परसीव, जो हम देख पाते हैं, इज ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड इज डेंस। सो अगर मेरे पास ये घड़ी है या मोबाइल है या जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं या कुछ एक्सेसरीज पहनी हुई हैं, ये भी एनर्जी मैटर है लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी के हैं, डेंस। इनकी भी लैंग्वेज होती है। सो अगर आपने कभी रॉक से क्रिस्टल्स देखे होंगे, रखे होंगे आपके घर में, तो आप देखेंगे वो भी धीरे धीरे ओवर द इयर्स बनते हैं, एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो भी इवॉल्व करते हैं। साउंड एंड लाइट, अभी आप साउंड सुन रहे हैं ना, आपके पास लाइट भी है, ये एक हायर फ्रीक्वेंसी की है लेकिन लाइट है। जैसे लाइट का वर्ड अगर आपने देखा हो, लाइट का मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक तो लाइट दे देती है और एक हल्की होती है। सो इसलिए ये जो साउंड एंड लाइट है ये हायर फ्रीक्वेंसी के हैं और सटल है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये टिश्यूज एंड ऑर्गन से बनी हुई है, और टिश्यू एंड ऑर्गन भी फर्दर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स किससे बने हुए? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम किससे बने हुए? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से बने हुए, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। और एटम्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जब उनको तोड़ते हैं तो प्योर एनर्जी है ना। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन, वी आर कंप्लीटली प्योर एनर्जी। इसलिए हम बोलते हैं वी आर ऑफ लाइट एनर्जी। जो हम ह्यूमन बींग से, हमारा एक जो बॉडी का सिस्टम है जो आसपास चल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी सिस्टम ऑल्सो। द ह्यूमन एनर्जी के तीन एस्पेक्ट होते हैं। हमारे जो ह्यूमन एनर्जी सिस्टम है जो चल रहा है, इसके तीन एस्पेक्ट हैं, ऐसा बोलते हैं। मेरे हिसाब से चार एस्पेक्ट है। पहला बॉडी, बॉडी जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। माइंड जो सुन सकता है, जो सोच सकता है, और जो मैनेज करता है, जो हमें गाइड करता है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और सोल जो हमारा हायर सेल्फ होती है। अब इस समझ जाइएगा, सोल इज इक्वल टू स्पिरिट इज इक्वल टू आत्मा इज इक्वल टू हायर सेल्फ। हायर सेल्फ मतलब उसने रीइंकार्नेट, उसने बॉडी में पार्ट लिया है, हमारे हमको एक आइडेंटिटी दी है क्योंकि उसको आना था, करना था। और मेरे हिसाब से जो फोर्थ डायमेंशन है वो है हार्ट। हार्ट का अपना ब्रेन होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, और हार्ट जो फील करता है वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। हार्ट भी हायर फ्रीक्वेंसी का हिस्सा है। सोल का काम है इवॉल्व होना। सोल का प्रथम काम है नॉलेज अक्वायर करना, विजडम अक्वायर करना, सीखना सीखना सीखना, कीप गोइंग थ्रू लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग, लेसन्स बाय लेसन्स बाय लेसन्स। सो सोल को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए सीखना अनिवार्य है, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना घर छोड़ दे। जब हम बोलते हैं आई एम गोइंग बैक होम, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में होम क्या होता है? ऊपर, where God lives, where there's pure consciousness.
वो अपना घर छोड़ के एक पिंजरे में आके बंद होती है, जो पिंजरा है ह्यूमन बॉडी, और प्लैनेट अर्थ में आती है। आप सबको बता दूं, हम एक यूनिवर्स जानते हैं, उसमें 9 ग्रह जानते हैं, ऐसे मल्टीपल 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 यूनिवर्सेस हैं। पर जो मदर अर्थ है, जिसको गैया बोलते हैं, इसकी कहानी ये है कि सप्त ऋषि, अगर आपने सुना हो, 7 ऋषिज, हाईली इवॉल्व बींग्स, जो ह्यूमैनिटी को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस भेजते हैं, लोग भेजते हैं, रास्ते भेजते हैं। उनकी बहन थी गैया, जिसने अपना एनलाइटमेंट, अपनी प्रोग्रेस छोड़ के बोले मैं एक प्लैनेट बनती हूँ, ये जो लोअर जातियां हैं, जो लोअर कॉन्शियसनेस के बींग्स हैं, इनको एलिवेट करती हूँ, असेंशन लाती हूँ। और मदर अर्थ का असेंशन हो रहा है, बट स्लो हो रहा है। इतना स्लो हो रहा था कि स्पिरिचुअलिटी में, मैंने किताब बताई थी इनक्रेडिबली बिलीवेबल, उसमें भी लिखा, वो जो चैनल हुई थी किताब बहुत साल पहले, उनके राइटर ही डाइड ऑल्सो। उसमें जो पैंडेमिक आया जिसका नाम था कोविड, ये इसलिए आया कि जो लोअर जातियां, लोअर फ्रीक्वेंसी के ह्यूमन बींग्स थे, वो चले जाएं, मुक्त हो जाएं, क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे एज ए ह्यूमन बींग। सो वो उनकी जर्नी थी। इसलिए यंग बच्चे, बड़े बच्चे, जो बड़े लोग, कितने हमें लगता था आगे पहुंचे, सुलझे लोग हैं, उन्होंने छुट्टी ले ली, बिकॉज वो नहीं इवॉल्व कर पाए। अभी जो हमारी बॉडी है, हमारी जो स्पिरिट है, यहाँ ये जो स्पिरिट है, यहाँ ये आती है, एक ह्यूमन बॉडी का रूप लेती है, क्योंकि ये कार्मिक टास्क पूरे करने होते हैं। कौन से कार्मिक टास्क? पुरानी लाइफ लाइन्स का, पुरानी लाइफ टाइम्स का। आप ये मत सोचिए कि आप ये पढ़ाई कर रहे हैं और आप 70-80 साल के हैं, और अब आप इतनी लेट उम्र में पढ़ाई मिली है या ज्ञान मिला है, अब तो फायदा नहीं, मरने वाले हैं। तो अगली बार पैदा होंगे, ये सब ज्ञान लेकर आएंगे वापस। ये खत्म नहीं होता, ये बही खाता चलता रहता है, ओवर ओवर लाइव्स चलता रहता है। सो सोल आती है एक लेसन सीखने के लिए, अपना कर्मा रिड्यूस करने के लिए, और इसको बोलते हैं पर्पस। कर्मा हमें रिड्यूस करना है। कई लोग बोलते हैं ना, गुड कर्मा बैड कर्मा। अरे कर्मा इज कर्मा, हमें कर्मा फ्री होना है। बट ठीक है, गुड कर्मा इज बेटर देन बैड कर्मा, राइट? ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा करो, तो एटलीस्ट आप बुरा कर्मा नहीं कर रहे। अच्छा कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अच्छा कर्मा कर रहे हो। पर धीरे धीरे हमें इस कर्ता हालत से, कि हम कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, इससे फ्री होना है। सब एफर्टलेस, जस्ट लाइक लाइट एनर्जी। टाइम लगेगा, बट आई अश्योर यू, अगर लगे रहेंगे पाथ में, तो आगे 102%, 1 to 1% जाएंगे ही जाएंगे। जो हमने इतनी बार सुना है लोगों से, पर्पस पर्पस पर्पस, इकिगाई किताब में भी है लाइफ पर्पस। पर्पस क्या होता है समझिएगा। पर्पस होता है एक गोल, एक लक्ष्य, एक कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लिखते हैं, बनाते हैं। कहाँ? मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। क्यों बनाते हैं? कि हम अकम्प्लिश कर लें, पा लें, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी से मैनिफेस्टेड एनर्जी की तरफ। क्यों? टू ग्रो एंड टू एक्सपैंड, टू लर्न and to understand. Expand, understand. To acquire knowledge and wisdom and evolve. Knowledge सीखेंगे, wisdom आएगी, knowledge को implement करेंगे, तो अपने experiences से wisdom आती है, और फिर हम क्या करेंगे? evolve करेंगे, grow करेंगे। उसके बाद क्या होता है? सोल एनरोल करती है माइंड को अपने साथ, भागीदारी बनाती है। अकेले कुछ भी नहीं होता, राइट? अब सोल बोलती है कि हाँ मेरे को मेमोरीज सब है, लेकिन ये कैसे मेमोरीज आएंगी? तो जो माइंड है, इसके 2 पार्ट होते हैं, हमने माइंड के चैप्टर में पढ़ा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सोल का भागीदार है, पार्टनर है, कि गाइड करे, मैनेज करे, मॉनिटर करे और रिकॉर्ड करे सारी की सारी हैपनिंग्स। माइंड बोलता है यस आई एग्री। इस हफ्ते में हम अपने माइंड गेम के साथ काम करेंगे, एंड विश्वास करिएगा, एक सेशन भेजूंगी, आज ही भेजूंगी, आज है कल, मैक्सिमम कल।
जब आप करेंगे ढंग से, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, आप अपनी पास्ट लाइफ देख पाएंगे बिना किसी की हेल्प के। एक बस ऑडियो चल रहा होगा, उसको फॉलो करना है। वो कहाँ से आ रही है पास्ट लाइफ? आपके सब कॉन्शियस माइंड से। सब मतलब नीचे कॉन्शियस है वो, हजारों लाइफ का डेटा है उसके पास। इट्स ब्यूटिफुल। अभी आपके जो सेशन कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं कि ये स्टेप है, उसमें भी एक एक स्टेप है कि क्या क्या किया है आपने उस लाइफ में, राइट? एंड उसको आप टैप इन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, सोल और माइंड को अब तो भाई अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, तो अब एक बॉडी को अक्वायर करते हैं वो, जो उनको हेल्प कर सके अपने पर्पस तक आगे पहुंचने के लिए। अब सोल को चाहिए गाइडेंस। हम लोग को, इंसानों को, जैसे टीचर की जरूरत पड़ती है कुछ समझने के लिए, कुछ जब मुश्किल लगता है टीचर चाहिए होता है, या हमारे टीचर किताबें बन जाते हैं, हम सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, दैट्स ओके। सोल को गाइडेंस चाहिए। किससे गाइडेंस चाहिए? सोल तो हायर सेल्फ है ही, बट सोल का भी हायर सेल्फ है। जैसे हमारे टीचर्स के भी टीचर्स होते, टीचर्स के भी टीचर्स होते, राइट? सोल के भी उसको आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस चाहिए। अब ये जो उनका सोल का हायर सेल्फ है, क्या करता है? जो हायर सेल्फ है उसके पास बही खाते हैं। आप लोगों ने पता नहीं, शायद किसी इंडियन धार्मिक मूवी में देखा होगा कि जब जाते हैं तो ऊपर खुलता है, पूरा रिकॉर्ड खुलता है। वो एक्चुअल ट्रूथ है। वहां आपके सारे के सारे कर्मों के रिकॉर्ड्स हैं, और वो हायर सेल्फ बोलता है इसने ये किया है, अब ये लेसन सीखने बाकी हैं। तो हायर सेल्फ बताता है, रेफरेंस करता है, उसके भी और गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो लोग साथ में मीटिंग करते हैं, काउंसिल करते हैं। चलो इस सोल को, इस पर्पस को फाइंड करने के लिए, इस लेसन सीखने के लिए ये वाली बॉडी चाहिए, सो दैट ये अकम्प्लिश कर ले। अब ये वाली बॉडी, बिकॉज अगर स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है तो लोग इसको इंडिया भेजते हैं, क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का डंका बजा हुआ है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कंट्री। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में भी उसको इस घर में भेजते हैं, इन माँ बाप के पास, कि ये इसको कंड्यूसिव एटमोस्फेयर मिल जाए अपनी जर्नी को बढ़ाने के लिए। तो एक इंसान जो पैदा होता है, उसका जो नाम होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी होती है एक्चुअल ट्रू सेल्फ में। और ये जो नाम है, हम स्पिरिट लेवल पे लेकर आते हैं। हम अपनी दादी, नानी, काका, मासी के मुख से निकलवा लेते हैं नाम, लेकिन नाम हमने चूज किया है सोल लेवल पे। और जो नाम है वो आपका कहीं ना कहीं आपको एक राह दिखाएगा कि ये नाम, मुझे इसके ऊपर चलना है। जब आप भूल जाओगे, जैसे प्रशांत मेरे हस्बैंड का नाम है, ट्रैंक्विलिटी, लाइक महासागर, प्रशांत महासागर, सुपर काम है। प्राची, जिसका मतलब है एनलाइटमेंट, और ईस्ट दिशा, पूरब दिशा, जहां सनराइज होता है। तो मैं एक लाइट वर्कर हूं, मेरा काम क्या है? लाइट बांटना, अपने आप भी एनलाइटन होना, दूसरों को भी हेल्प करना। दिस इज माई जर्नी, माई पर्पस। मुझे कैसे मालूम पड़ा, मैं बताऊंगी आपको, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर द सोर्सेस। आप भी उनके पास जाकर अपना पर्पस खोज सकते हैं, अगर आपको दुविधा हो तो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। गाइड्स ने बही खाता देखा, बोला इसको ये कंट्री, ये पेरेंट्स, ये नाम, ये पहचान दे दो। ओके फाइन, ग्रेट। अब गाइड्स का क्या करते हैं वो लोग? खत्म नहीं हुआ उनका काम। गाइड हमारे लेसन्स देखते हैं जो हमें जरूरत है सीखने की। और ये समझ लीजिए, हमें हमारे प्राइमरी गोल, प्राइमरी सोल ग्रुप मेंबर्स, जिन्होंने भी डिसाइड किया है रीइंकार्नेट करने का, उनके साथ भेजते हैं। हमारी एक सोल फैमिली होती है, प्राइमरी सोल ग्रुप होता है, जो इमीडिएट होते हैं। और ये जो होते हैं यूजुअली 7 होते हैं, 5 से 7 होते हैं जो इमीडिएट आप इनसे मिलते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो इमीडिएट 7 हैं वो आपके बेटा बेटी, माँ बहन, हस्बैंड वाइफ, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। उनको सोलमेट्स भी बोला जाता है। इट इजंट, सोलमेट का मतलब यही नहीं कि वो सेक्सुअल केमिस्ट्री, ओ द वन, ओ द लव, आई मीन, ऐसा नहीं होता। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। जो गाइड्स होते हैं, ये नोट करते हैं कि चलो प्राइमरी सोल फैमिली ये हुई, सोल मेंबर्स ये, ग्रुप मेंबर्स ये हुए, सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स ये हुए, वो भी रीइंकार्नेट करते हैं।
तो आप जिनके साथ पले बड़े हो पहले की लाइफ्स में, एक मेन होता है, सेकंड होता है, वो सारे सारे साथ में धरती पे माँ गैया पे प्रवेश करते हैं, एक माँ की वूम्ब के द्वारा, कोक के द्वारा। फिर क्या होता है, अब ये जो गाइड्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी सोल को देते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, बेस्ट पॉसिबल तरीके से, कि हम अकम्प्लिश कर पाए नॉलेज। टीचर्स आती हैं लाइफ में, चीजें स्थितियां बनती हैं। अब सोल क्या करती है उसके बाद? सोल माइंड के साथ मिलकर चूज करती है कि ये पर्पस मुझे सीखना है, मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे गाइडेंस मिली है, और अब वो अपने खुद के डिसीजंस बनाती है। चॉइस, चूज। अब सोल कैसे डिसीजन लेती है? सोल वेरियस चॉइसेस देखती है कि मैं ये क्या प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे क्या कर, ये आपको नहीं पता क्योंकि सोल का काम कर रहे हैं, तो आप तो सोल का रिफ्लेक्शन है, तो आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या क्या मंथन चल रहा है। सोल देखती है कि हाँ, ये चॉइस ऑफ बॉडीज है, ये पर्पस एसोसिएटेड है चॉइस ऑफ बॉडीज, ये मेरा सोल फैमिली है, ये मुझे सीखना है। अब क्या होता है? बहुत सिंपल है। सोल एक बॉडी का सिलेक्शन करती है, गाइड्स का काउंसिल मांगती है, अपने, मैंने बताया पहले, दोबारा बताती हूँ, पेरेंट्स चूज करती है कि हाँ ये पेरेंट्स के साथ। अब लोग बोले पेरेंट्स बहुत मारते पीटते हैं, वो भी हमारी लर्निंग का हिस्सा है कि हमें कठिनाई से गुजरना है, या मेरे केस में फ्रीडम ही फ्रीडम है शुरू से। तो मैं जल्दी पढ़ाई में आ गई, जल्दी आध्यात्म में आ गई, जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आ गई, कुछ एटमोस्फेयर कंड्यूसिव था। नाम एनलाइटमेंट लिया है, इसका मतलब लास्ट लाइफ है। जब मुझे लोगों ने बोला, एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि तुम्हारी लास्ट लाइफ है, लाइक व्हाट बकवास, आई मीन कैसे पता चलता है इन लोगों, क्या बोलते हैं लोग। मेरी मॉम को भी बोला तुम्हारी भी लास्ट लाइफ है, एंड मॉम और मैं भी कई लाइफ में साथ में रह चुके हैं। शी इज माई सेकेंडरी सोल फैमिली, फर्स्ट सोल फैमिली नहीं है। कैसे मालूम, वो भी मैं बताऊंगी आपको। देखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुना है, देखा है। ऑलराइट, तो ये आप भी कर पाएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी कर पाएंगे। जब बॉडी चूज कर लेते हैं, पर्पस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आपकी माँ पिता चूज कर लेते हैं, माँ से बहुत एक्सट्रीम संबंध होता है, हर चीज में एक्सट्रीम्स में। और आप अपने कंट्री, अपनी लैंग्वेज, अपना किस जगह पैदा होना है, अपना एनवायरनमेंट, आपके सिबलिंग्स कैसे, आपका रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, क्वालिटी लाइफ कैसी होगी, आपका पदवी कैसी होगी, सब ये सोल लेवल पे हम डिसाइड करके रीइंकार्नेट करते हैं। फिर यहाँ आके बोलते हैं मैं काली मोटी ये क्यों, रिच पुअर क्यों? अरे बाबा, ये चूज किया था, अब गाली गलौज कर रहे हो। उसको मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। जो मिला है वो आपने चूज किया है। क्यों चूज किया है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा कि आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई हैव चोजन, एंड मुझे इस पथ पे गाइडेंस, प्रोटेक्शन, गार्डिंग मिल जाए, सो दैट मैं आगे बढ़ती जाऊं इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। आज आप लोगों ने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज या मैजिकल मी ज्वाइन किया है बिकॉज आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ लेकर जा रही हूँ बिकॉज आप समझे कि क्या साइंस है। बट ये आपने चूज किया है, मैं तो सिर्फ आ गई। बिकॉज यू वर रेडी, आई अपियर्ड। बिकॉज आई एम रेडी, माई टीचर्स अपियर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ चेन, इट्स अ चेन। अब आपका क्या कर्तव्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ सोल to learn these lessons, to expand your consciousness, to enhance your frequency, so that you must involve and evolve. बॉडी में लोग हैंडीकैप लेके पैदा होते हैं बिकॉज उनको उससे भी इवॉल्व होना होता है। अब कर्मा क्या होता है? हमने हजारों बार सुना है कर्मा कर्मा कर्मा। व्हाट इज कर्मा? सिंपलेस्ट मीनिंग कर्मा का है कि एक ये एक्शन हम करते हैं जिसका कॉज एंड इफेक्ट होता है। जो उसका इफेक्ट जो होता है वो हमारा फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस होता है। हमने ये किया, इससे ये हुआ। कर्मा एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। संस्कृत में इसका जो मतलब होता है एक्ट, कर्म, कर्मा, करो, एक्शन करो। सो ये वर्ड बनता है। सारी थॉट्स जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं, ये एक पार्ट है एक चेन का, जिससे कॉज एंड इफेक्ट होता है। एंड हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं इन सबको एट हर पॉइंट ऑफ टाइम।
जो लॉ ऑफ कर्मा है ये कॉस्मिक लॉ है। कॉस्मिक्स मतलब कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स जो हमारे आसपास है, ये कॉस्मिक लॉ है एंड ये सब के ऊपर अप्लाई करता है। इसलिए जब हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ में आते हैं, हमें सबसे कंपैशन एम्पैथी चाहिए, जानवरों से भी, प्लांट से भी। लोग फूल तोड़ लेते हैं ऐसे ही बैठे बैठे, अरे अब घर में लगा लिया। आपने लाइफ खत्म कर दी, कर्म बांध लिया। जमीन पे गिरा हुआ फूल है, आप उठा के गमले में लगा लो, ओके फाइन, आई मीन अपने वाज में लगा लो, ओके फाइन। वी कांट फिनिश अ लाइफ। हमने बैठे बैठे मच्छर मार दिया, लाइफ गॉन, कर्मा बांध लिया। मच्छर काट रहा है, बचा लो अपने आप को, ओडोमॉस लगा लो, कुछ और लगा लो, ओके। वी कांट किल अ लाइफ। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैंने हजारों हजारों लाइफ खत्म कर दी। तभी जैनिज्म में एक टाइप का सेक्ट है जहां वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं, मुंह पट्टी, स्थानकवासी होते हैं। हम तो अब पहन रहे हैं मास्क, राइट। वो लोग खाना भी खाते हैं थाली में, लास्ट में पानी डाल के उसको पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कण कण में लाइफ है और उसको वेस्ट करना, साइंस बिहाइंड। मैं ये नहीं बोल रही हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते, बट मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। लॉ ऑफ कर्मा एक कॉस्मिक लॉ है जो सबके ऊपर अप्लाई करता है और टाइम से हमको अलाउ करता है कि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें, सोल की एवोल्यूशन करते रहें। उसके बाद क्या होता है, जब हमने इवॉल्व कर लिया, सब कर लिया, कई बार हम थक जाते हैं, मैं तो नहीं हैंडल कर सकता, मेरे लिए तो ओवरलोड हो जाता है, मैंने जो जर्नी किया मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड वगैरह अपनाया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सुसाइड, और स्ट्रॉन्ग कर्मा बांध दिया। 50 लाइफ पहले चले गए, क्योंकि हमें राइट नहीं है अपनी लाइफ खत्म करने का, दूसरों की खत्म करने का भी नहीं, अपनी खत्म करने का भी नहीं। सो आज के बाद से कभी फूल तोड़ना हो या मच्छर मारना हो, 2 बार सोचिएगा, थिंक अबाउट इट ट्वाइस। सेकेंड थिंग, बॉडी फिर लाइफ में आती है, फिर कुछ सीखने के लिए आती है। जब तक हम 7 वर्ष के नहीं होते, हमें अपनी पास्ट लाइफ और रीजंस याद रहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। माय हस्बैंड प्रशांत छोटे से थे, बेबी से 4-5 साल के होंगे, टू ड्राइव ए स्कूटर एंड वो जो होता है ना साइकिल, जो भी छोटे छोटे जो चलाते हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाने जा रहा हूँ। मेरा घर यहाँ है, पान की दुकान के ऊपर घर है, इस कॉलोनी में घर है, मेरे बच्चे का नाम ये है, फलां ये है। और ये आप देखेंगे, अगर आप गूगल करेंगे आज, तो बहुत बच्चे मिल जाएंगे जिनको पास्ट लाइफ याद रहती है और उनको लेकर जाते हैं। दैनिक भास्कर की फैमिली में भी हुआ था, उनको मैं, आई नो देम क्लोजली, वो लेके गए आगरा। आगरा में जिसने उसका मर्डर किया था, उसने पांव छुए उसके, उसने दूर फेंक दिया बच्चे ने, जा तू दूर जा। दे रिमेम्बर। उसने बताया इस फाइल को खोलो, इसमें ये डिटेल्स हैं। दे रिमेम्बर एवरीथिंग। तो 7 साल तक हम अपने पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं और हमारी जो ह्यूमन कंडीशनिंग है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, उसको हम धीरे धीरे भूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्मा के क्षेत्र में बन जाते हैं और हम जो करने आए थे, हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। अब कर्मा कैसे हम अक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हमें और आगे बढ़ना होगा, रेडी होना होगा। अब तक कोई सवाल? आपके सवाल के जवाब इस कहानी के स्तोत्रों में धीरे धीरे मैं बताती रहूंगी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का। समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे बोलेंगे सब किताबी बात है। एंड आई एम ओके विद बोथ द एस्पेक्ट्स। मेरा काम है बताना, आप समझे ना समझे, अपनी सोल से आपने अपने आज एंजल्स गार्डियन सबसे आपने एक ब्लेसिंग ली है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, गाइड करो, लेट मी गो डीपर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। माई जॉब इज टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब हमें क्या होता है, कर्मा कैसे हम इकट्ठा करते हैं? कर्मा जो है एक इटर्नल असर्शन है ह्यूमन फ्रीडम के लिए। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो मौखिक बोली है, हमारे जो कर्म हैं, डीड्स हैं जो हमारे, या जो धागे जिसे हमको पिरोते हैं, वो हम सब हमारे आसपास होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हमें क्या होता है, बिटवीन द फर्स्ट इन ब्रेथ, जो पहली सांस हम अंदर लेते हैं पैदा होते ही, और जो आखिरी सांस हम छोड़ते हैं मृत्यु के समय,
उसके बीच में हम अपनी एक लाइफ जीते हैं। क्लियर? हमारी लाइफ भरी होती है उतार चढ़ाव से। जैसे हमारी हृदय की गति होती है, लाइफ लाइन होती है, वैसे ये जो नीचे की तरफ जाती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इश्यूज क्रिएट करती है, चैलेंजेस क्रिएट करती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हाउ डू दीज प्रॉब्लम्स और इश्यूज और चैलेंजेस अकर इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों आते हैं ये? समझिए, समझिए, सुना है हजारों लाखों बार, वॉट यू सो इज वॉट यू रीप। जो बोते हो वो पाते हो। You must have heard this saying hundreds of times. But to be able to sow that seed of love, joy, happiness, respect, responsibility, bhaichara, brotherhood, sisterhood, we need to live with awareness, conscious awareness. Awareness क्या होती है? आइए समझते हैं। अवेयरनेस होती है हर पल को ऐसे जीना जैसे मेरा आखिरी पल हो, या हर पल को ऐसे जीना कि जैसे मैं फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट हूं और सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है, तो मैं आई एम बीइंग प्रेजेंट। हमने एक्खा टोल की किताब कही थी, आप लोग के साथ नहीं, कई लोग थे आप लोग, द पावर ऑफ नाउ। अब में जीना, इस पल में जीना जहां कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, अवेयरनेस के साथ, लिविंग इन द हियर एंड नाउ। अगर मैं अभी सेशन पढ़ रही हूँ स्पिरिचुअलिटी का, तो मैं अभी यहाँ हूँ, ये नहीं कि हाँ हाँ उसने ये कहा था। नो, नाउ आई एम हियर। क्या है जो हमें रोकता है यहाँ रहने से? हमें समझना पड़ेगा कि सारी मोमेंट जो हम जीते हैं, हम नंबर ऑफ चॉइसेस चूज करते हैं। कुछ चॉइसेस हमने कॉन्शियसली करी होती है, जानकारी के साथ, अवेयरनेस के साथ। कुछ हमने अनकॉन्शियसली ऑटो पायलट मोड पे करी होती हैं। A lot of our choices are made unconsciously by ourselves. हम पता भी नहीं होता, हम चॉइस चूज कर लेते हैं और उसको हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हम उसमें विश्वास करते हैं, बाहर के इंसान में, चीज में, स्थिति में, और उसके हिसाब से हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हम ये ऑटो कंडीशन में जा रहे हैं। समाज ने ये बोला, फैमिली ने ये बोला, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो मैं चूज कर लिया। वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो समाज की चॉइस थी, मेरे पार्टनर, मेरे बच्चों, मेरे पेरेंट्स, मेरे लव्ड वंस की चॉइस थी। मेरी जो, तो मेरी चॉइस क्या है, वो मुझे कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। जो चॉइस हम अनकॉन्शियसली मनाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, करंट लाइफ टाइम पे, वो पुरानी लाइफ टाइम में चलती आ रही होगी, हर लेवल के बीइंग में, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। तो हमें क्या करना है? अवेयर रहना है। अब हाउ डज दिस कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हैपन? बहुत बड़ा सवाल है। आई होप कोई बोर नहीं हो रहा, बिकॉज थोड़ा सा गहरा चैप्टर है। आज मैंने कोई कॉमिक स्लाइड्स नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, बिकॉज दिस इज अ सोल वीक। आने में 3 हफ्ते लग गए, राइट? थैंक यू स्कॉची फॉर सेइंग, बिकॉज जिन लोग को ओवरडोज लगती है, सो यू एंजॉयिंग प्रकाश। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक अ कहानी, कि थोड़ा सा रस आ जाए, मीनिंग आ जाए। बट मेरे हिसाब से बेस्ट हफ्ता है, सोलफुल वीक है मेरे लिए। आई लव इट, दिस इज माई पर्पज, राइट? सो आई लव इट। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग कैसे होती है। This conditioning or this programming happens as a result of past events या circumstances, जिस तरीके से हमने सीखा, जाना, परखा, फील किया उस इवेंट को या उस circumstance को। एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, एक फैमिली लेते हैं, 4 जनों की फैमिली है। फैमिली में एक पापा है, मम्मा है, एक बेटा है, एक बेटी है। परफेक्ट फैमिली। मेरी दादी बोलती थी मिलियनर फैमिली होती है जिसमें 4 होते हैं, ऐसे। सो के मैं उस एग्जाम्पल के लिए होती हूँ। बेटा 12 साल का है, बिटिया 10 साल की है। घर में एक रूल है कि दोनों बच्चों को 6 बजे के पहले पहले खेल कूद के घर वापस आ जाना है। दोनों बच्चे एक दिन लेट हो जाते हैं, फादर पनिश करते हैं, ये मैं आज नहीं बोलूंगा तो रोज लेट होंगे। पनिशमेंट क्या है? तुम टीवी नहीं देख सकते, अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख सकते 3 दिन के लिए, 1 नहीं 2 दिन, 3 दिन के लिए। बेटा बोलता है, माई फादर डज नॉट लव मी, आई एम नो गुड,
My father doesn't love me. He's very strict. He doesn't understand me. मैं आज लेट हो गया तो इतनी बड़ी बात क्या हुई कि 3 दिन मुझे टीवी नहीं दिखाएंगे. I'm no good. उसके सबकॉन्शियस माइंड से गाइड करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो बोलता है कि यही स्टेटमेंट्स मेरा ट्रूथ है, दिस इज माय आइडेंटिटी. और इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है. उसका काम है स्टोर करना. ठीक है, उसने स्टोर कर लिया पापा के रेफरेंस के साथ. बिटिया को क्या क्या परसीव करती है, वो पॉजिटिव एंगल से परसीव करती है. मेरे पापा मुझे बहुत लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं, इसलिए मुझे बोल रहे टाइम पे आओ बेटा, ठीक नहीं है, मच्छर काट जाएंगे, कोई आ जाएगा, इसलिए. और मैं इसको बहुत ध्यान रखूंगी और आगे से मैं 6 बजे के बाद नहीं आऊंगी. ये भी फ्यूचर रेफरेंस में स्टोर हो गया उसकी मेमोरी में. बेटा दिखता है पनिशमेंट की तरह, बेटी दिखती है अच्छे पर्सपेक्टिव से एज अ गाइडेंस. दोनों के मेमोरी बैंक में स्टोर हो गया. अब इस फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेगा समझते हैं. ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ये स्टोर हो गया माइंड में. जब कभी बेटे को पनिशमेंट कभी भी, तो उसको वो अपने आप को बोलेगा, उसने उसने कुछ भी रॉन्ग किया, मुझे पनिशमेंट मिली थी, उसको दिमाग में वो है, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नो गुड. डॉटर रेनफोर्स करेगी, आई एम लव्ड एंड आई एम ऑन टाइम. एक की नेगेटिव कंडीशनिंग, एक की पॉजिटिव कंडीशनिंग है. कैन एनीबडी गेस which one of these two is living with awareness and is here in the now? I know everyone can guess. कौन है दोनों बच्चों में से जो अभी जी रहा है with awareness in the here and now and not into past grievances? Absolutely सोनिया, absolutely everyone जो भी टाइप करने वाले. डॉटर, उसने पॉजिटिवली गाइडेंस लिया, उसने नेगेटिवली नहीं कंस्ट्रक्ट किया. अब ये माइंड क्या है? माइंड एक सटल बॉडी है ऑफ लाइट एंड accompanies the soul to record, to store everything that the soul has reincarnated. सोल ने जो जन्म लिया, reincarnation लिया है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए फिजिकल बॉडी के थ्रू. माइंड के सिंपल अंडरस्टैंड करना है तो माइंड 2 पार्ट में, हमने पहले भी बोला था माइंड चैप्टर में, दोबारा एक बार आज बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड क्या है? लॉजिकल, रैशनल, थिंकिंग माइंड, रीजनिंग माइंड, एनालिटिकल माइंड. कॉन्शियस माइंड हमेशा डिपेंडेंट होता है सबकॉन्शियस माइंड पे कि वहां से इंफॉर्मेशन आएगी. कॉन्शियस माइंड मैनिपुलेट भी करता है इंफॉर्मेशन को कि वो अच्छी दिखे, और फंक्शन करता है कि मैं मास्टर हूं. और ये आप सबने देखा होगा, चीज कैसी हुई बट दिखाना कैसे है आपको बड़े स्मार्टली पता है. नहीं पता है ऐसे हुआ, पता है ऐसे हुआ, हीरो दिखाना है, बेस्ट, आई एम द हीरो, ओ आई एम दिस, आई एम दैट. ये कॉन्शियस माइंड का काम है, वो हीरो बनना चाहता है, हीरोगिरी में विश्वास करता है. सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अरे ज्ञानी सूफी बाबा, वो परमानेंटली स्टोर भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है. जो भी इंफॉर्मेशन देखता है कैसे प्रोसेस करता है? हमारी 5 इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस होते हैं, राइट? व्हाट यू फील, फील अंदर से भी बाहर से भी. व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू सेंस, व्हाट यू स्मेल. इन शॉर्ट, it stores all the possible memories, thoughts, emotions, experiences, सब कुछ हमारे बारे में. किसी भी माइके लाल को नहीं राइट है किसी भी मेमोरी को हटाने का. पीरियड, रिटन इन स्टोन ओवर years. कोई किसी मेमोरी को नहीं हटा सकता. नो वन हैज एक्सेस. सबकॉन्शियस माइंड रियल मास्टर है, रियल जीनियस है, जो बोलता नहीं है बट वही जीनियस है, वही मास्टर है. लेकिन ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, ऑब्जर्वेशन, देखना, अवेयरनेस के साथ जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, कॉन्शियस माइंड चेंज होने लगता है. उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. सबकॉन्शियस माइंड कई बार डर जाता है और वही इंफॉर्मेशन देता है जो अभी कॉन्शियस माइंड रेडी है लेने के लिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझिएगा. सबकॉन्शियस माइंड गाइडेंस रोज हर पल दे सकता है. कैसे? 6 सेंस है ना, 6 सेंस. आई हैड अ गट फीलिंग, 6 सेंस आई.
कई लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है. माय हस्बैंड हैज अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन. एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेरिस के स्टेशन पे थी, मेरी लास्ट ट्रेन थी टू गो टू, आई एम नॉट श्योर व्हिच कंट्री वाज इट, मुझे याद नहीं. एंड 3:30 बजे थे इंडिया के, और मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे, पहली बार मिले थे. और हम बातों में, और वो दिख रही थी कि ट्रेन जाने, हम बहुत पहले पहुंच गए थे स्टेशन. मैं कहा यार तू बोर्ड को देखते रहना, फिर हम वहां स्टेशन पे, वहां बैठने की जगह नहीं होती जहाँ ट्रेन जाती है, अच्छा देख लेना. मटी ने देखा नहीं, और मैं बोली ठीक है ना, टाइम पे है ना, मुझे लग रहा है कि हम लेट हो रहे हैं. बोली नहीं नहीं, डोंट वरी डोंट वरी. बातें चलती चलती चलती, एंड वी मिस द ट्रेन. हमने वो टिपिकल हिंदी मूवी देखा, वो ट्रेन सामने जा रही है. अब मैडम के पास पैसे भी बहुत कम थे, मेरे पास बहुत थे, तो आई हैड गिवन टू हर. अब मेरे पास बहुत भी कम बच गए, बिकॉज अब सब कुछ लास्ट ब्लैक था. मैं कहा तू स्पेंड कर ले, अपने बेटे के गिफ्ट खरीद ले. इंडियन फ्रेंड थी, पहली बार मिल रहे थे वहां पर कॉन्फ्रेंस के दौरान पे. उस समय क्रेडिट कार्ड चलते थे, चिप नहीं थी. प्रशांत को बताने का मजा ये है, प्रशांत को 3:30 एट नाइट इंडिया में पता था कि कॉल्स में अब ट्रेन पे बोर्ड हो गए. ही न्यू आई मिस्ड माई ट्रेन. कैसे पता था? सिक्स सेंस. कैसे पता था? सोल लेवल पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. तो सोल स्पीक टू ईच अदर इन द मेटाफिजिकल वर्ल्ड. उनको लैंग्वेज नहीं चाहिए. आप उसको टेलीपैथी भी बोल सकते हैं, राइट? सुना है ना टेलीपैथी वर्ड? ये जो सेंस है नोइंग की, कि कहाँ से आती है, डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से आती है. उसको सब कुछ पता है हमारे बारे में. तो कभी तकलीफ में बैठे तो आंखें बंद कर लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को याद करिए, हाई सेल्फ को याद करिए, बोलिए मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे बताओ क्या करना है. उसके लिए 3 डीप ब्रेथ, 3 डीप ब्रेथ, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट. इसको बोलते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट. इनहेल एक्सहेल करो. अपने हाथ ज्ञान मुद्रा पे रखो या ओपन में रखो, हथेलियां ऊपर. आस्क योर सोल फॉर योर गाइडेंस एंड यू विल बी ब्यूटिफुली गाइडेड. मैं एवरी डे अपने अंदर जाके गाइडेंस लेती हूँ, एवरी डे. और एक बहुत सुंदर किताब मेरी लाइफ में आई मेरे टीचर के दौरान, इसका नाम है यूनिफाइड. अब आप उस जर्नी में आ चुके हैं कि वो आप सेल्फ कोर्स कर लीजिए. मैंने कई बार ट्राई किया स्टार्ट करने का सेशन दोबारा, वो कुछ ना कुछ होके नहीं होता, बिकॉज मुझे आगे बढ़ना है. मैं सेम चीज को दोबारा नहीं कर, मैं वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही. ट्राई किया. तो यूनिफाइड की जो सेशंस हैं, प्लेलिस्ट है बॉन्ड 1-to-1 फॉर लाइफ पे, जाइए, रोज अपने आप करिए. बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरा मन है दोबारा 121, आई मीन 6 महीने का करने का, बट वो हो नहीं रहा है. ओके, डू इट. उससे क्या होगा बता देती हूँ. हम लोग कई बार डाउट में, स्पिरिट ने आवाज दी कि दिल ने बोला कि माइंड ने बोला, ये क्या गेम चल रहा है. उसमें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के हिसाब से सिग्नल्स आते हैं. जैसे हम हाँ बोलते हैं ना, हाँ ना, तो ऐसे बॉडी में सिग्नल्स आते हैं ना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए हाँ है, ये मेरे लिए ना है. या नेगेटिव एनर्जी आती है, उसको कैसे भेजना है, वो सब उसमें किताब में, सेशन में. बहुत सिंपल किताब है, 24 हफ्ते का कोर्स है. इट्स ब्यूटिफुल. तो अगर आपको करना है वो भी करने का ट्राई करिएगा. नहीं तो ये सेशन हम करेंगे, अनदर 6 days तो होगा ही. इस प्रोसेस के दौरान मेरे बेटी या बेटी के दिमाग में क्या मेमोरी स्टोर हुई फादर की परसेप्शन से, वो जैसे स्टोर होती हैं. कभी भी फ्यूचर में उस लड़की को डांट पड़ती है, कोई भी उसको इनवैलिडेट कराता है, रेप्रिमांड करता है, पनिश करता है, वो बार बार बोलेगा आई एम नो गुड, आई एम नो गुड. क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जो भी उसकी लाइफ में एक्टिविटीज बेस्ड है वो इसके ऊपर से हो चुकी है, और इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स भी डिफाइन होंगे. तो इसलिए कभी किसी को कुछ कटु बात बोलो, स्पेशली बच्चों को, सोच समझ के बोलो. नेगेटिव नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं सिखाना है. ये भी एक स्पिरिचुअल लाइफ है पेरेंटिंग की. उसका प्रोफेशनल लाइफ, उसका पर्सनल लाइफ, आपके उस एक वचन की वजह से लाइफ लॉन्ग यू कैन मेक हिम और ब्रेक हिम. एक्चुअली क्या होता है, जब वो व्हेन ही इज नॉट लिविंग and when he's not responding, what is actually happening to him? He's living and he's being guided by what he's stored in his subconscious mind till the age of 12. At that time he's going on to feel worse, worse, worse. Eventually क्या होगा? He will manifest itself into trauma. Trauma, इतना बड़ा word. Trauma क्या है? Trauma एक mental या emotional wound है जिसको heal नहीं किया गया है.
जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज एक चोट लग गई मुझे और सोर हो गया वो, और उसको कोई मेडिकेशन नहीं दी, कोई दवाई नहीं लगाई, कोई हीलिंग नहीं दी, कोई नेचुरल कुछ नहीं दिया, और उसमें मक्खियां आके बैठ रही हैं, उसको वापस कुरेदा जा रहा है, कहीं छिल गया, हाथ लग, वो नासूर हो जाएगा, शायद मेरा बॉडी पार्ट काटने लग जाएगा। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ट्रॉमा, इतना गहरा आघाव कि वो अपने बस बैठ जाता है। तो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं वो अकर करते हैं पास्ट में, और असिमुलेट करते हैं। अगर प्रॉपर्ली उनको नहीं समझा जाए तो बार 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 सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, तो वो ट्रॉमेटिक, उनको ना क्या बोलते हैं, फिट्स पड़ते हैं, उनको सीरियस होते हैं, बिकॉज वो बार बार उसको रिलिव कर रहे हैं। What happens if this traumatic experience gets re-stimulated? बिहेवियर कैसा आ सकता है आपका? इरेशनल बिहेवियर, कोई लॉजिकल बिहेवियर नहीं, कंपल्सिंग लिमिटिंग बिलीफ्स, ये ऐसे है, ये ऐसे, आपने अपने आप को दायरे में बांध दिया। लिमिटिंग बिलीफ कैसे होते हैं? तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, अरे काली बिल्ली ने सड़क क्रॉस कर ली, दीज आर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये सच नहीं है, लोगों ने बोला, किसी ने इसको वैलिडेट कर दिया, आपको हाँ सच है। नो। सो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आओगे, मैजिकल वर्ल्ड में आओगे, इन चीजों को चैलेंज करो। ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट। फिर जस्टिफिकेशन दोगे, झूठ बोलेगे, जस्टिफिकेशन दोगे। सॉरी टू से 90% प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, पंडित्स का काम है रिलीजन को आगे करके फॉल्सिफिकेशन मन में डालना, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऑल बकवास, डिस्टॉर्शंस, अनजस्टिफाइड जनरल स्टफ, जनरलाइजेशंस। ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकते हैं प्रीवियस लाइफ टाइम पे, माँ की कोख के अंदर, बर्थ के दौरान पे, चाइल्डहुड में, अडल्टहुड में, डेथ के समय भी। कैसे मरते हो उससे फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ सेशन में ऋतु बनी हुई है। ऋतु एक लाइफ में सोल्जर थी। इसको कैसे मारा? ये ऊपर खड़ी हुई थी टावर पे, किसी ने इसको यहाँ सर पे जोर की मारा, और ये गिरी सर के बल पे नीचे और मर गई। इस लाइफ तक ये सरदर्द लेके आई, भयंकर वाला। पास्ट लाइफ में गई तो इसकी हीलिंग हुई, राइट ऋतु? इफ यू हियर, टेल ऑन द चैट बॉक्स। सो इतना ट्रॉमास हम कैरी करते हैं, किनके सर्वाइकल दर्द है, बैक में दर्द है, दीज आर ऑल ट्रॉमेटिक स्टफ। बेस्ट पार्ट इज, हमें लुई से की किताब मिली, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें एफर्मेशन रीजन समझ में आते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन। ट्रॉमेटिक सिचुएशन कैसी हो सकती है? एक्सीडेंट बेस्ड, किसी ने असॉल्ट किया, किसी ने छोड़ दिया आपको, किसी ने आपको अटैक किया, किसी ने आपको बर्न किया, किसी ने आपको कंसीव कैसे किया, रेप के दौरान कंसीव किया, तो वो भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। अब आप बोलोगे मेरी तो गलती नहीं, स्पिरिट लेवल पे चूज किया था इसलिए हुआ, या आप डूब के मर गए, या किसी ने आपको काट दिया, मार दिया, गिरा दिया ऊपर से, आपको ह्यूमिलेट कर दिया, जैसे द्रौपदी को ह्यूमिलेट किया था, दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन, बिग ह्यूमिलेशन। आपको हैंग कर दिया, फांसी लगा दिया, आपको जेल में डाल दिया, आपको चोटें लग गई, आपका बहुत सारा लॉस हो गया, मर्डर हो गया, बहुत आगे आगे आगे, रेप हो गया, आप भूख के मारे मर गए, जैसे मैं एक लाइफ में भूख के मारे मर गई थी। तो इस लाइफ में क्या लेकर आई? बिंज ईटिंग, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कि पेट फट गया, मुंह फट गया, वो सब बाहर निकल के आ जाए, फिर भी खाते रहो, बिकॉज मैं वो लेकर आई थी। तो क्या करना पड़ा? हील करना पड़ा। कैसे हील करना पड़ा? अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस से मांगना पड़ा कि मुझे हीलिंग दो, इससे बाहर निकालो। तो जेल से हम बाहर निकल सकते हैं। मेरे टीचर हैं एस एन गोयंका जी, उनसे मिलना मेरा नहीं हुआ, विपश्यना के टीचर हैं। वो बताते थे उनके कैंप में कोई आया था, वो मेडिटेशन विपश्यना करते हुए जंप करता था, इतना जोर जोर के, जोर जोर के, जोर जोर के। क्यों? पहले की लाइफ में साइंटिस्ट था, एटम बॉम्ब बनाता था, तो उसकी वजह से इतनी लाइफ्स गई, ट्रॉमा हुआ, तो इस लाइफ में अपने कर्मा रिलीज कर रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से? हम इमोशनल एंड सोमैटिक डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसी होती हैं ये? जैसे एंग्विश, एंगर, एंजाइटी, डिस्पेयर, डिप्रेशन, डिसलाइक, डिसगस्टेड, envy, fear, frustration, guilt, hate, hopelessness, selfish होना, hostility, jealous होना, लस्ट होना किसी के लिए,
बहुत लोनली होना, रिपल्शन होना, शेमफुल होना, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिजिकल सेंसेशन कैसी होती है इनकी? ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में, डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, नींद सी आ रही है, चक्कर आ रहा है, बहुत थकान, बहुत फटीग, एग्जॉशन हो चुका, फेंट हो जाते हो, बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, भूख लगती है, पोस्चर रॉन्ग हो जाता है जाने अनजाने में, मूड बहुत हो जाते हैं, नौजिया आता है, नमनेस हो जाती है, पेन आता है, पैरालिसिस हो सकता है, और एकदम बेचैन, रेस्टलेसनेस हो सकते हो, सडन स्वेटिंग, प्रोफ्यूज, बहुत स्वेट आता है। इसका भी मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रॉमा है, या बहुत प्यास से गला रूंधता ही रहता है, ओ हो, ऑल दीज आर रीजंस फॉर योर थिंग। अब आपको समझना है, अब आपको समझना है हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं इनको हील करने के लिए, इन ट्रॉमास को, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को, इन इश्यूज को। अगर आपने सुना हो, हिप्नोथेरेपी होती है, रिग्रेशंस होती हैं पास्ट लाइफ की, मिडिल लाइफ रिग्रेशंस होती हैं, दो लाइफ के बीच में, जब सोल से कनेक्ट कर सकते हो उस लाइफ से, स्पिरिचुअल एंजल गाइडेंस मान सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड या इनर कॉन्शियसनेस को कुछ मोडालिटी के थ्रू आप हील कर सकते हो। कई लोग के लिए हिप्नोटिक बहुत बढ़िया रहती है, जो वर्बली बोलते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, कई लोग के लिए नहीं, उन लोग के लिए जो रेडी, ओपन, रिसेप्टिव नहीं रहते। आप कनेक्शन ढूंढ सकते हो, लिंक ढूंढ सकते हो, कैसे? फीलिंग्स से, फिजिकल सेंसेशन से, अपनी खुद की अवेयरनेस से, अपने वर्बल कम्युनिकेशन से, डिस्क्रिप्शन से, इमेजेस से, इंप्रेशन से। जैसे मैंने आप कई सेशंस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं जो मैं शेयर करती हूँ इन माय स्पिरिचुअल, अपने आप कर सकते हो, यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी प्रोफेशनली। सेशन के दौरान कि मैं किस इंटेंशन से सेशन करने जा रही हूँ, मुझे गाइडेंस मिले, और सेशन के बाद मुझे सीखने को मिले कि मेरा इससे क्या सीखना हुआ। सक्सेसफुल होते हैं बहुत ज्यादा ये, और ये डिपेंड करता है जो हम करने वाले हैं, कितना हम रिसेप्टिव, ओपन स्टेट में हैं, और कितना हम चेंज करना चाहते हैं, कितना हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कितना हम एक्शन लेना चाहते हैं, कितना आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कितना छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, कितना अवेयरनेस के साथ साथ कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहते हैं, किसके बारे में? अपने प्रेजेंट के बारे में। सो ये आपको मैंने आज बेसिक, एकदम बेसिक, जैसे समझते हैं ना, एब्सोल्यूट बेसिक्स बताए हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आई नो सवाल बहुत होंगे, जितना हो सकता है मैं इंटरेस्टिंगली कंस्ट्रू करूंगी सेशन को। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत समझ में आ जाएगा, बट आई थिंक काफी कुछ समझ में आ जाएगा, इन माय ओपिनियन। सो आई वांट यू टू बी जस्ट ओपन एंड रिसेप्टिव। कहानी के फॉर्म पे सुनिए, देखिए कि आपकी आंखों के सामने, बिफोर योर वेरी आईज, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, कि आपकी आंखों के सामने क्या आ रहा है, आपको फीलिंग क्या हो रही है, अपने गट फीलिंग पर रिलाई करिए। आई एम जस्ट अ चैनल, I'm channeling the information that I have learned and construed over the years with you all. How much you want to understand depends completely upon you. किसी को ट्रूथ लग रहा है, किसी को स्टोरी लग रही है, किसी को फॉल्स लग रहा है, ये आपका परसेप्शन है। So I will not say that go with it, do not go with it. I am no one. Ask your higher self. मैं आपको सिंपल चीज बताई है, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। एंड हायर सेल्फ में आपका कनेक्शन हमेशा रहता है। सो उसको मैग्नीफाई करिए, इस हफ्ते खुद करिए, आंसर्स आपको रोज 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 हर पल मिलेंगे, राइट? So that will be my request to every single person. That's all that I will tell you, right? Today I want to read this beautiful chapter in front of you. It's called Right in Front of My Eyes, before your very eyes. Thomas Kyle, a few of us may know him. He was a writer, a very profound writer and a historian. बहुत amazing body of work किया है इन्होंने। उनका कहना था, this world, after all, our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whoever will think of it. ये आप स्पिरिचुअल लाइन में लेकर जाएं तो समझिए, जो जिंदगी में आप जी रहे हैं, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है सब साइंस बेस्ड है। साइंस क्या होता है? यू ट्राइंग टू डिकोड इट। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस पर्पज से आया हूँ, क्या हो रहा है, जब आप समझने लग जाओगे
like a maths equation, it'll just come unfolding. It's magical, it's wonderful if you're open and receptive. And समझ पाओगे, ये नहीं कि अरे पता नहीं क्यों होता है. पर जो सोचेगा, विचारेगा, जाएगा इसके अंदर, एक्सपीरियंस करेगा, वो ज्यादा मैजिकल निकल के आएगा, right? Anyway, back to Rhonda Byrne's The Magic Book. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every single day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, thank you for it multiple times a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had new desires, I would add them to my list. And ये मैं बता रही हूँ आप सबको, ये magical list बहुत, I can't tell you how good this is. Please करिएगा इस session को. Please. Back to Rhonda Byrne. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora, I listed another beautiful thing happened. I was flying in the mainland of Tahiti on my way home from when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it is filled with brim and with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and the happiness that was palpable around me surrounded me. As I enjoyed the short flight, with these beautiful people, everything became crystal clear to me. The reason why they're so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on this plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on this plane was before my very eyes. Gratitude. I've shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you've never felt before and is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. So इसलिए श्रद्धा and saburi, patience. 4 साल लग गए उसकी 10 डिजायर पूरी होने में, बट हो गए ना. कई बार हम लास्ट तक चल जाते हैं, 80% जर्नी कवर कर ली, जब मैजिक होने वाला था बस यार बहुत ट्राई कर लिया, बहुत मैनिफेस्टेशन कर ली, बहुत ग्रेटिट्यूड कर लिया, अब नहीं यार मैं I've done that, been there. So welcome to the world of nothing. Okay? To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I could be forced to shut it down or I would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on the desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, and to have paid all my debts to expand my company, to restore every relationship to the best of its capacity, to improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life along with the usual list of material stuff. कहना क्या है? बंदी फंसी पड़ी है neck deep, full deep into कर्जा. फिर भी मटी के पास guts हैं to think of a very luxury life. ये जिगरा चाहिए, ये courage चाहिए हम सबको. जब तक हमारे ड्रीम्स हमको डरा ना दें, कैसे होगा? ओ लॉर्ड, तब तक वो ड्रीम्स नहीं हैं. That's why think big, dream big, achieve big.
Rhonda Byrne कहती है, my number one desire would seem like an absolute impossibility to many of the world, many to the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. कोई जिसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, काम भी शुरू नहीं किया है, बोलो मिलियन लोग को मैं फायदा करूंगी. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and by one, they appeared before my very eyes. I crossed them off my list. So now, it's your turn, my dear co-seekers, to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire lists that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. आपके पास पीला पेपर with red pen में लिखा हुआ है desires आपकी. आप चाहो तो तकिए के नीचे से, गद्दे के नीचे से निकाल कर उसके साथ वर्क कर लो. जितना ग्रैटिट्यूड दे सकते हो उतना करना जितना अभी है. कैरी योर डिजायर लिस्ट विद यू टुडे इन योर पॉकेट, बिकॉज ये कैरी करनी है. अगर आपको उसको येलो लिस्ट को भी अपने साथ कैरी करना है, वेरी गुड, उसको बस आप पावर दे रहे हो, इट्स ऑल राइट. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one of them as you have received it. मैंने क्या किया था, इस लिस्ट को अपने, मेरा जैसे स्टडी टेबल जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, सामने एक पिन अप बोर्ड है, लाइक मैंने वहां लिख दिया था. इनफैक्ट इट्स अ राइटिंग बोर्ड. तो मैंने अपने हाईलाइटर से लिख लिया था ना, एवरी डे आई वुड रीड देम ट्वाइस थ्राइस, गिव देम एनर्जी, सिट डाउन हियर ओनली. मेरी कुर्सी का बैक एकदम स्ट्रेट है, तो उस समय मैं स्ट्रेट बैठ नहीं पाती थी विदाउट द बैक सपोर्ट. करके आई वुड मैनिफेस्ट इट, एंड इट्स ब्यूटिफुल. They're still coming true, okay? It's not that they've come true, but they're coming true every day. So if you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you feel you have time, open it up and read through it and feel as much gratitude as you can for each one. इसका एक सिंपल चीज है, कैरी नहीं भी करना तो अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो. मोबाइल तो हर समय खोलोगे, मिल जाओ, देख लो, वर्क कर लो. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. इसका मतलब ये नहीं संतुष्ट हो जाओ, 10 डिजायर करिए, पूरी हो गई, खत्म. नो, एक खत्म हुई, एक ऐड करी. ह्यूमन बीइंग हो ना. अगर लाइफ में मटेरियलिस्टिक पोजेशंस खत्म हो गए तो दूसरे के लिए कि मैं भी चैनल बनूं, मैं भी चैनल ऑफ लव एंड लाइट बनूं, मैं भी कुछ सिखाऊं किसी को, या मैं भी किसी को मोटिवेट करूं कि इन किताबों को पढ़ो, या मे बी इन सेशंस को ज्वाइन करो, बिकॉज दे विल चेंज द लाइफ. मे बी जो भी आपका हार्ट मन बोलता है, मैं नहीं बोलती, जो भी आपका हार्ट मन बोलता है. एंड रॉन्डा बर्न कहते हैं, इफ यू आर लाइक एनीथिंग लाइक मी, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. It is commendable. I'm telling you guys, it's commendable. So बहुत important है ये एक्सरसाइज करना. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 22, बिफोर योर वेरी आईज. पहला, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग लिखना. वाई लिखना इंपॉर्टेंट है, वाई यू ग्रेटफुल. एंड में रोज बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जितना कृतज्ञता फील कर सकते हो उतना फील करना. दिन की शुरुआत में अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट ले लीजिए, अपना क्रिएट करिए. और मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटीज है. अभी आप वो आपने बीज का बीजारोपण कर दिया कल फुल न्यू मून के समय. अब उसको खाद पानी देने का, सनलाइट देने का टाइम है, जो आप अब इनके बुक्स के थ्रू कर रहे हो. तो वर्क ऑन देम. Read through each sentence, each desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions. Take your list out, read through it, and feel grateful. रात को डे स्कैन करिए, क्या बेस्ट चीज हुई मैजिक रॉक में हाथ में रख के, and be grateful. All I can say is I have a very beautiful feeling about this session of ours, especially this last week. So you all have sanghas. Tell everyone to come for these sessions. Please tell them. And अगर किसी ने मिस किया है, I'm very happy कि राहुल को बोल के जिन जिन ने मिस किया उनको भेजो. इतने लोगों ने एनरोल किया था, चौथे हफ्ते तक आते आते आधे हो गए. वो बच्चा पार्थ नहीं आ रहा, वो विभूति नहीं आ रही. नो, शी इज आल्सो नॉट हियर. अब ये बच्चे नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर तो हमारा यही है. मैं तो बड़ी खुश होती हूँ बच्चा कम और कपल्स कम. एंड कपल में देखो जिगीशा ने एनरोल किया, वो भी नहीं आती. So what do I do? I mean, I can just be a channel, right? So what you can do right now is to please call your Sangha Mitras at least the last hafta. But problem क्या है, हम सब ने 3 हफ्ते की जर्नी करी है.
हम धीरे धीरे हमने आपको रेडी किया इस स्टेट पे आकर कि ये हमें स्पिरिचुअल वू ना लगे, हमें लगे कि हाँ दिस इज ट्रूथ। वो लोग आएंगे तो देखेंगे कि क्या बकवास है, दिस इज ऑल गॉन। सो it could be that's the reason why we go step by step. So that is my journey and I hope you enjoyed the session. I enjoyed, मुझे आप तक का नहीं पता, जब मैं ये शेयर करती हूँ ना, आई ब्राइटन अप, वाओ सच अ मेस्मराइजिंग वर्ल्ड। इतने सारे मैजिक्स खोलने आप लोग के सामने, दिन सिर्फ 7 हैं, एक तो खत्म भी हो गया आज। 6 दिन में जो कर पाऊंगी आई विल मेक माई एफर्ट कि मजा आ जाए स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में। व्हेन यू ओपन एंड रिसेप्टिव, आप देखिए यूट्यूब से सेशंस आएंगे, चीजें आएंगी, बुक्स आएंगी, एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली मैजिकल, राइट? सो बैक टू आवर मेन विंडो। ऑलराइट, okay, there we are. So I hope you enjoyed about spirit की, आत्मा की क्या कहानी है, कैसे हम ह्यूमन बींग्स बनते हैं, क्या उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या हम आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी हमारी चॉइसेस के ऊपर, हमारी अवेयरनेस के ऊपर, हमारी पावर ऑफ नाउ के ऊपर, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ ओल्ड कार्मिक थिंग्स। प्राइमरी सोल फैमिली है, सेकेंडरी सोल फैमिली है, और कल मैं अपना मोस्ट फेवरेट सेशन कराने वाली हूँ। कई लोगों ने किया होगा बट फिर भी आइएगा, इट्स अमेजिंग। बट एनीवेज आज पहले आज का हम कंप्लीट करते हैं। सो हमने आज करा हार्ट, सॉरी मैं ये चेंज करना ही भूल गई। आई थिंक मैंने कर ओके, मैं आपके सामने आई एम गोना मेक दिस, यू नो, सॉरी, ऐसे भी होता होगा, राइट? सो 7 days ऑफ सोलफुल अवेकनिंग हमने आज अंडरस्टैंड किया, ट्यून इन किया, अपने आप को अवेकन किया, डे 1 ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे वर्क किया है। ओके, कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये हमने स्पिरिचुअलिटी का एक मिनी क्रैश कोर्स किया है। सब कुछ नहीं सीखा बट मिनी क्रैश कोर्स किया है। आज का असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट सिर्फ इतना है, अपने अंदर जाओ, अपना लाइफ पर्पस ढूंढो। पर्पस क्या होता है बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, मैंने सेशन में बताया था। अंदर से क्या आवाज आती है और क्या इजी है आपके लिए। आई नो इट्स टफ बट बेसिक लेवल पे वर्क करो, धीरे धीरे इसको बेटर करेंगे हम। अभी आपका शायद हो सकता है कि मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, या मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, या मुझे यू नो मेरे लिए ये बहुत इजी है, या मुझे कुछ भी, अभी कुछ सिंपल चीजें हो सकती हैं। हम धीरे धीरे इनके ऊपर वर्क करेंगे सो दैट हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप ग्रोइंग बिगर बिगर डीपर डीपर एज विद इन। हमें गहरा पेड़ की तरह बनना है, अपनी जड़ें डीप करनी है। तो अब हम स्पिरिचुअलिटी के हफ्ते में अपना आधार, अपना बेस देख रहे हैं। सो वर्क इन दैट सेल्फ, राइट? ऑलराइट एवरीवन, congratulations on completion of my favorite day, day 22. ये साल भी है 2022 and day 2022, so it's amazing कि हमने आज शुरुआत करी है। There's all synchronicities, कुछ प्लान नहीं होता है, just होता है। Thought of the day, कार्ल सागान ने बोला, science is not only compatible with spirituality, it is a profound source of spirituality. जो हम साइंस पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को डिकोड किया हुआ है। तो साइंस स्पिरिचुअलिटी साथ साथ में चलती है। जो लोग बोलते ना कि नहीं ये अलग है, नो, स्पिरिचुअलिटी की हर चीज साइंस से रिलेट करता है, एंड अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। सो एंजॉय योर लाइफ, enjoy this beautiful magical morning, listening to the Buddha's flute, no lyrics, but I want you to enjoy this period when I play the music, to ask yourself, चाहे आंखें बंद करिएगा, चाहे अपना कैमरास ऑन रहने दीजिए, ऑफ रहने दीजिए, what is the purpose of my life, right? अपने आप आंसर आएगा। जब मैंने पूछा what is the purpose of my life, और मैंने कब पूछा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 1 में, जो हमने शुरू करी थी 12121 लास्ट ईयर शुरू करी थी हमने। उसके दौरान मैंने पूछा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो मेरी को सीकर थी आयुषी, आई ऑलवेज थैंक हर, शी सेंड मी दिस ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड इनक्रेडिबली बिलीवेबल। हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 3 में पढ़ी थी, तो इट्स मैजिकल। खरीदनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, लिंक भेज दूंगी। ऑनलाइन अमेजोन पे जाएंगे तो 1,10,000 की किताब है, ऐसे खरीदने जाएंगे लिंक के थ्रू तो 400-500 रुपए की किताब है।
सो बहुत सरल लिखी हुई है, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में किताब है, बट सिंपल, जो हम सब समझ सकते हैं. बट एंजॉय दिस फ्लूट, एंजॉय एंड आस्क योर हायर सेल्फ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. एंड ये पर्पस वो नहीं है कि मुझे मिलियनेयर ट्रिलियनेयर बनना है, मुझे मेरे बच्चे आईवी कॉलेज लीग कॉलेजेस में चले जाएं, मैं बहुत हैंडसम या गॉर्जियस या ब्यूटीफुल बन जाऊं. इस बॉडी के बियॉन्ड मेरे आत्मा का पर्पस क्या है, ये पूछेगा आज आप आत्मा के हफ्ते में, स्पिरिट के हफ्ते में. राइट? सवाल करो, जवाब मिलेगा. सवाल करो, खजाना